آج کی ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ شاید ہی آپ نے پہلے ان مناقب کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے، آپ کی رفتار کتنی ہے، آپ کی اصل صورت کیسی ہے، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو نہایت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میزان کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ تو تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ اور دوستو، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود ادا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس بارے میں ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود رہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے
जमुर्द, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। बरवायत अहमद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज है। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। प्यारे दोस्तों, ये है शान हमारे प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। एक अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा है और दूसरा अल्लाह का महबूब तरीन फरिश्ता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा जिंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई। हुजूर को मुतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत पसंदी के आदी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्के से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ई है। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमद पर घबरा गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए और तमाम वाक़या अपनी रफ़ीक़ हयात हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया, जो उन्हें वरका बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक की कि ये वही कासिद है जो दीगर अंबिया पर अहकाम इलाही लेकर नाजिल होते रहे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल तक आपके पास तशरीफ लाते रहे और बहुक्म खुदा मुख्तलिफ मौके पर खिदमत सरअंजाम देते रहे। अबू जहल ने एक मौके पर बुतों की कसम खाई कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाए यकता का जिक्र किया तो नाउज़ुबिल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने तशरीफ लाए और काबा की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीखे मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दरमियान आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 दुनियावी और 2 आसमानी रफीक होते हैं। मेरे आसमानी रफीक जिब्राइल और मिकाइल और दुनियावी रफीक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे दोस्तों, रिसाला शफा में रफीक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे दोस्तों, रिसाला शफा में तहरीर है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान करीम में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहा है, क्या मेरी रहमत का कोई वस्फ और जुज़्व तुझ तक भी पहुंचा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु के जरिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। प्यारे दोस्तों, हम आपको मजीद रिवायात भी बताएंगे जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान, औसाफ और फजीलत के हवाले से
अहादीस में बयान हुई। लेकिन यहाँ तस्करा करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मुलाकात का। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक गुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की जिंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस गुलाम ने आखिरत की जिंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास है। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ पहुंचा है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत खराब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुंचा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बिठाती और चलाती फिराती थी। एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जेब में मौजूद मसवाक पर पड़ी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मसवाक चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से असबात में जवाब दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से मसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चुबाकर और नरम करके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफका के साथ हमेशा जिंदा रह सकते हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रफाकत इख्तियार कर सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस आला रफीक की रफाकत मंजूर है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जसद खाकी से परवास फरमा गई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। दोस्तों, यूं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लेकर उतरने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए। बरवायत हदीस मुस्नद इमामुल अहमद अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रसूल यानी रसूल हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। उनको तमाम अंबिया कराम की तरफ तरबियत, इमदाद और आफात से बचाव के लिए खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुक्म से भेजा गया। आपको बताते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता कलाम बंद कर दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि वही का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू
दोस्तों दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें, और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।